This is the CSET. Basically, if you see your syllabus, so word is written as what? This is the General Studies 2, paper 2. General Studies paper 1, that was history, geography, polity, economics, science, current affairs, etc., ecology and environment. In this paper, in CSET paper, the syllabus are general mental ability, GMA, logical reasoning, data interpretations, and basic numeracy, interpersonal skills, interpersonal skills, and communication skills. Then decision making, decision making, and another was that was comprehension. देखिए ये जो सबसे पहले तो ये समझिए कि सिलेबस व्हाई दिस सिलेबस हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन APPSC 2022 APPSC 2020. As you all are aware, the controversies arises in the APPSC 2017 exams. Notification was given in 9th May 2017. Exams was held in, I think, October, September in 2017. And the controversy just started after the declaration of the results. People demanded that the students from the commerce, students from mathematics, students from other engineering and etc., they didn't qualify in prelims, and more students they have passed from geography, sociology, history, etc. Why such controversy arose in that time? The reason was the commission has adopted the scaling process. According to that process, the student in which subject is more, they are more benefit compared to the student in which have the less students. There was a very complicated formula, but in simple way I want to tell you. So for this, a cutoff was made, and on the basis of that cutoff, that index was inversely proportional to number of the students. तो जिन सब्जेक्ट में ज्यादा बच्चे थे उनको कट ऑफ का फायदा मिला और उन सब के सब प्रीलिम्स क्वालिफाई कर गए, और जिसमें बच्चे कम थे उनको नुकसान हुआ, जिसको कमीशन मॉडरेशन कहता है. बट दिस मॉडरेशन प्रोसेस वाज अर्लियर अडॉप्टेड बाय द यूपीएससी and the matter goes in the court, and Supreme Court has quashed this before 2010. तो 2010 में उसने क्वेश्चन कर दिया था और बोला था कि दिस फॉर्मूला इज फॉल्टी एंड इट इज नॉट इक्वल टू ऑल. So then in 2011, UPSC introduced CSAT system. CSAT system means there would be no optionals in the prelims. All students will be evaluated at one platform, equal platform, because they are going to do the job for all subjects. It is very good. Why it is good? The reason is that there is no rule of the optional subject, or especially those subjects which were getting benefit of moderation of the concept. This matter remain as usual in Arunachal Pradesh Public Service Commission. It adopts the old systems of the UPSC pattern, and the same problem was faced in the UPSC in APPSC exams. Matter goes to the High Court. First, High Court
give the verdict in the favor of the students, and it gives the clear-cut direction. There should be one committee under the chairmanship of the Vice Chancellor of the RGU, and that committee should be comprised of the several experts of all subjects, and that it will scrutinize the standard of the toughness of the question. Questions are out of the syllabus. एक बहुत खराब ट्रेंड अरुणाचल प्रदेश में है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, चाहे आप लोगों को अच्छा लगे चाहे खराब। यहाँ निगेटिव थॉट कूट कूट करके भरा हुआ है, लोगों में टांग खिंचाई करना है, आउट ऑफ सिलेबस है। ये सब चीजें कहाँ से होती हैं? कभी भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कोई सिलेबस नहीं होता है। क्वेश्चन में भी आस्क्ड फ्रॉम एनीवेयर फ्रॉम दैट सब्जेक्ट। मान लीजिए हिस्ट्री है, हिस्ट्री की क्या लिमिट है भाई? कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। साइंस है, उसकी भी कोई लिमिट नहीं। एक नॉर्मल स्टूडेंट को बांधने के लिए कहा जाता है कि इट स्टैंडर्ड शुड बी द स्टैंडर्ड ऑफ द ग्रेजुएशन लेवल। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम और तो आपके रेगुलर एग्जाम या एकेडमिक एग्जाम में यही डिफरेंस है। एकेडमिक एग्जाम में 10 के क्वेश्चन पढ़ के जाइए, पास होके चले आइए, और हम आप समझते हैं कि बहुत बड़े विद्वान हो गए, बहुत बड़े तोप हो गए, हमें सब कुछ आने लगा। सच्चाई कुछ नहीं होती है। टू गेट ए वेरी गुड मार्क्स इन द एकेडमिक इज वेरी इजीएस्ट टास्क कंपेयर टू क्रैक सिविल सर्विसेज एग्जाम। बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के टॉपर्स कभी भी IAS नहीं बन पाते क्योंकि उनका अप्रोच केवल नंबर इकट्ठा करना होता है, उनका अप्रोच नॉलेज इकट्ठा करना नहीं होता। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपको हर एक दृष्टिकोण से तैयार रहना है, फ्रॉम नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम क्विक माइंड फ्रंट पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम पॉजिटिव माइंड ऑफ व्यू, नेगेटिव नॉट। तो वहां पे भी मैटर गया, वहां पे भी ये खींचतान हुआ, और देन मैटर गोज टू द डबल बेंच ऑफ द Guwahati High Court. It questions the commissions. Then again matter goes to court. इस तरह से सारा प्रोसेस हुआ और अल्टीमेटली आज के डेट में रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, लोग ज्वाइन कर चुके हैं। डिप्टी एसपी पोस्ट हैज बीन ज्वाइन, सेवरल अदर पोस्ट हैज बीन ज्वाइन, एंड APPSC दे आर गोइंग टू ज्वाइन विद इन 15 डेज। 15 तारीख तक उनको भी डेट दिया गया है, उनको ज्वाइन करना है। तो जो स्टूडेंट ध्यान से पढ़ाई में लगा रहा, वो तो आज अधिकारी बन गया, उसकी लाइफ बन गई। जो स्टूडेंट अपने को बड़ा चालाक, बहुत समझदार और बहुत होशियार समझता है, वो सड़क पे घूम रहा है, कब मिलेगा मौका भगवान न जाने, नोबडी नोज। इसलिए योर मेन एफर्ट चेज टू द स्टडी। लोगों के बहकावे से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होने वाला है। APPSC में तो ऐसे भी कुछ नहीं होना है, वो लोग आपको कुछ समझते भी नहीं। अच्छा, ये सिलेबस इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गया कि कमीशन को लगा कि फॉल्टी है और हमेशा ये मैटर जो है कोर्ट में फंसता रहेगा। वी कांट कंडक्ट द एग्जाम फ्री एंड फेयर एंड स्मूथ। दैट्स व्हाई गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश took the decision. The decision was taken in the cabinet, then approved by the cabinet, then sent to the notification by the APPSC, and it has been notified. And after notification, this syllabus is accepted. गवर्नर ने नोटिफाई कर दिया है। ये सिलेबस रखने का सबसे बड़ा फायदा है कि अब कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगी सब्जेक्ट को लेकर के, कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है कौन सा खराब है, इट डजंट मैटर। अच्छा खराब का यहाँ मतलब किससे ज्यादा सिलेक्शन हो रहा है, किससे कम हो रहा है, कोई सब्जेक्ट अच्छा और खराब नहीं होता है। यहाँ पे ये जो सिलेबस है, दिस इज फॉर ऑल स्टूडेंट फ्रॉम ऑल स्ट्रीम। दे आर फ्रॉम BA background, they are from BSc background, they are from agriculture background, they are from engineering background, they are from medical background, they are from diploma, and whatever be, if they are eligible for to fill the form. This topic is only qualifying. This is very important thing. Qualifying. Qualifying means you have to score only 33%, and there would be 80 questions, and each question is 2.5 marks. Total marks is 200. So if you see the 33%, it is approximately 27 questions. लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना कि 27 क्वेश्चन करेक्ट होना चाहिए। ये गलत फहमी में कभी मत रहना कि हम 27 क्वेश्चन करके आ गए हैं और नाउ वी आर गोइंग टू क्रैक द एग्जाम। कभी नहीं क्वालिफाई करोगे, क्योंकि आप अगर 35 to 40 questions attempt करोगे, and naturally there will be some wrong answers, 5-6 questions,
तो हम आपको एक मेथड, एक फॉर्मूला वो देता हूँ, कैलकुलेशन मेथड पहले समझ लीजिए, जिससे कि जिंदगी में यहाँ पे गड़बड़ नहीं होने पाए। नहीं तो जो बच्चा आकर के बोलता है, झूठ बोलता है, पूरा झूठ बोलता है, मैं पूरी तरह से जानता हूँ। वो झूठ बोलने के पीछे दो कारण होता है, या तो उसको कैलकुलेशंस नहीं पता है, देन ही इज इनोसेंट, उसको हम बेनिफिट ऑफ डाउट्स देते हैं। लेकिन वो जानकर के भी झूठ बोलता है, ये सबसे खराब आदत है, वो कभी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। उसके पीछे रीजन क्या है? अननोन जो एरर होती है, सपोज यू सॉल्व 45 क्वेश्चन आउट ऑफ द 80 एंड इन दिस देयर आर 12 क्वेश्चन रॉन्ग, व्हाट वुड बी योर नेट वैल्यू? 12 क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, 45 माइनस 12 दैट इज 33, और इस 33 में भी 1/3 ऑफ दिस मीन्स 4, तो -4, अब ये कितना हो गया? 29, this is 29. Okay, so those students who attempted 45 questions and 12 question is wrong, the net score of the student is 29. It is the net score. और एग्जाम में नेट स्कोर देखा जाएगा, एग्जाम में आपने कितना अटेम्प्ट किया है ये कभी नहीं देखा जाएगा। दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ नेगेटिव मार्किंग इन दिस एग्जाम। अर्लियर देयर वाज नो नेगेटिव मार्किंग। अब आपको बहुत ही कॉन्शियस होकर चलना है कि किसी भी तरह से क्वेश्चन हमारे नेगेटिव नहीं होने चाहिए, अदरवाइज यू विल बी आउट। अब 27 है, 27 में 29 पा रहे हैं, यू आर बॉर्डर लाइन केसेस। अगर इसको हम थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट करें, ये 12 की जगह पे अगर हमारा 9 हो जाए, तब देखिए स्कोर कितना बनता है, कितना डिफरेंस हो जाएगा। हियर स्कोर इज 29, याद रखना। इफ सपोज 9 क्वेश्चन इज रॉन्ग, देन व्हाट वुड बी द स्कोर? केवल 3 क्वेश्चन और सही करने से, तो इट विल बिकम 36, और 36 माइनस 3 स्कोर इज 33। Earlier score was 29. Here score reached at 33. Abrupt change, अगर आप देखें कितना बड़ा चेंज हो गया। 29 was the marginal case, कि अगर कहीं से एक दो क्वेश्चन भी गड़बड़ हो जाता तो आप बाहर हो जाते। लेकिन अगर 9 पे निगेटिव है और 45 अटेम्प्टेड है, यू आर इन सेफ मोड, फुल्ली सेफ मोड। 33 क्वेश्चन, अब आपको कोई भी बाहर नहीं कर सकता है। तो मेरी एडवाइस है कि आपको जो अटेम्प्ट करने हैं वो 45 to 50 के अराउंड करने हैं। ऐसा भी नहीं करिए कि हम सब अटेम्प्ट कर दें और सब गलत हो जाए। मान लीजिए सपोज, जो एंडर एग्जाम्पल, सपोज यू सॉल्व द 60 क्वेश्चन एंड 20 क्वेश्चन इज रॉन्ग, देन व्हाट देखें? इट इज 40, और नेगेटिव और भी निकाल लीजिए -7, तो इट इज अराउंड 33। After attempting 60 questions and making 20 wrong questions, net score is 33. After attempting 45, making 9, again 33. तो एक्यूरेसी इसमें ज्यादा है ना कंपेयर टू दिस, क्योंकि मोर क्वेश्चन मोर एरर। लेकिन ऐसा भी नहीं करना है कि इतना कम क्वेश्चन कर दो कि आप कट ऑफ पे ही नहीं पहुंचे। सपोज यू सॉल्व ओनली 30 क्वेश्चन, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं। सपोज यू सॉल्व द ओनली 30 क्वेश्चन and you attempted only 30 questions and only 3 questions is wrong, then what happens? It will become 27 or -1, it is 26, you are out, बाहर हो गए। तो मान लीजिए 5 क्वेश्चन गलत हो गया, जो कि होगा, निश्चित होगा। सपोज 6 रॉन्ग हो गया, इट इज 24 - 2 दैट इज 22। तो आपकी मैक्सिमा और मिनिमा दोनों डिसाइड करना है इस एग्जाम में। मैक्सिमा ये करना है कि आपको 45 to 50 करना है, और रॉन्ग हार्डली 10 to 12 करना है, और मिनिमा तो किसी भी कीमत पे आपको, मतलब 45 से नीचे तो जाना नहीं है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। दिस इज द स्ट्रेटजी टू क्वालिफाई दिस एग्जाम, एंड इट इज सेम फॉर ऑल। एंड वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इफ द स्टूडेंट will not qualify this paper, their answer sheet of the general studies paper 1 will not be evaluated, and the merit will be decided on the marks of the paper 1. So your all effort on the general studies, that will be useless, zero, nil. तो इसको हमें एकदम अच्छे तरीके से लेना है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इसमें कोई टॉप नहीं करेगा,
ये मत सोचिए कि इसमें हमें टॉप करना है और हमें बहुत अच्छी मैथ आनी चाहिए, बहुत अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए, बहुत अच्छे सब कुछ आना चाहिए तभी क्वालिफाई करोगे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे एक नॉर्मल तरीके से आपको चलना है, जैसा मैंने पहले भी डिस्कस किया कि आपका जीएमए का लगभग 15 क्वेश्चंस आएंगे, लॉजिकल रीजनिंग अगेन एक्सपेक्टेड 15 क्वेश्चन, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड बेसिक न्यूमरेसी 10 to 15 क्वेश्चन, interpersonal skill decision making it is again 10 to 15 questions, and comprehension it is 25 to 30 questions. तो बहुत इजी वे में लेके चलना है, इजी वे में लेके चलना है कि हमें यहाँ पे अराउंड 10 सही कर लेना है, यहाँ पे 10 सही कर लेना है, यहाँ पे अराउंड 8 क्वेश्चन सही कर लेना है, इंटरप्रिटेशन एंड दिस दैट इज 8 क्वेश्चंस एंड अराउंड 20 क्वेश्चन हियर, टोटल सम इज 40 and 48. We are very safe mode. ओके अब इसमें जो सबसे इजी टॉपिक आता है जो हम अभी आज डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको बोलते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन। इजी इन सेंस कि इफ योर मैथमेटिक्स इज लिटिल बिट बेटर, थोड़ा सा भी अगर आपको जोड़ना, घटाना, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, परसेंटेज, रेशियो, if you know little bit only this topic, then again the questions may be solved. And this topic is known as data interpretation. It is very new in APPST syllabus. तो कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जिसको इसको पढ़ने की जरूरत ना पड़े, सबको now, and I want to tell you no need to worry about this, already you have studied this. I think कि सारा स्टूडेंट एनसीईआरटी का बुक्स कम से कम अरुणाचल प्रदेश में सीबीएसई बोर्ड की बुक हो या स्टेट पब्लिक सर्विस स्टेट बोर्ड की बुक हो, सब में स्टैटिस्टिक्स नाम का टॉपिक होता है, सांख्यिकी, और उसमें अपने बार चार्ट, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, टेबल, इन सब चीजों को 7th 8th के सिलेबस में या हार्डली 10th के सिलेबस में आपने पढ़ा है। इसका मतलब आपको इससे बिल्कुल वरी नहीं होना है। यू आर फेमिलियर विद दिस, बट द ओनली डिफरेंस इन दैट नाउ द लेवल ऑफ द क्वेश्चन विल बी टफ, वे ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन दैट विल बी द टफ एंड एक्सेट्रा। अब सबसे पहले डाटा इंटरप्रिटेशन स्टार्ट करने की जरूरत क्या है, ये तो समझिए क्यों कमीशन ने इंट्रोड्यूस किया। द मेन रीजन टू इंट्रोड्यूस दिस सिलेबस इज कि इन जॉब when you will qualify and you will go in the job, you will see several files that will come at your table to take the decision to decide whatever be, and sometimes it might be possible the files will be very lengthy and very bulky, 100 page, 200 page, 500 page, and etc. When these files will come before you, what happens? It depends कि आप उसको पढ़ोगे, और डेफिनेटली टू रीड 100 पेज, 200 पेज, 5-10 days, 15 days will take place, क्योंकि एक ही फाइल तो नहीं पढ़ना है, आपको और बहुत सारी फाइल दिन भर में आ जाएंगे जिसपे आपको कुछ ना कुछ कमेंट लिखना है, डिसीजन लेना है। बट इफ द फाइल इज प्रेजेंटेड बाय द चार्ट्स like line chart, bar chart, pie chart, and etc., then it will be very easy. Only read the 2 or 3 pages of the report, you can understand the meaning of the whole report, you can take the decision, you can write down your comments, then you pass the file. तो इसलिए रखा गया है कि आपको फाइल की कमेंटिंग कैसे करनी है, उसमें कितना इजी वे होता है और कितना एक्यूरेट एंड इफेक्टिव वे होता है, दैट इज। आप देखते हैं कहीं भी जाइए आपको प्रेजेंटेशन करने को बोला जाएगा, प्रेजेंटेशन में आप जो भी पीपीटी बनाएंगे उसमें मोस्टली डेटा को आप वर्डिंग्स में रेयरली लिखते हैं। यू ट्राई टू प्रेजेंट इट
in a form of the tables, in a form of the bar chart, pie chart and etc. तो ये सब चीजें होने के कारण ये सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया गया है। अब यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डेटा। जैसा कि नाम है, आपको डेटा का इंटरप्रिटेशन करना है। जो भी डेटा दिया है उसकी मीनिंग को समझना है, उसको इंटरप्रेट करना है, उसको समझ करके उसके यू हैव टू ड्रा द कंक्लूजन फ्रॉम द दिस। फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डेटा। Data is a collection of information. Simply you can say it is a collection of the information. तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले we collect the raw data. For example, suppose 2021 census that is going to happen. वो तो अलग बात है कि अभी तो कोरोना आ गया, होगा सेंसस की नहीं होगा, क्या होगा कोई नहीं जानता है। सेंसस में सबसे पहले क्या होता है कि रॉ डेटा कलेक्ट किया जाता है। रॉ डाटा मीन्स कलेक्ट करने का मतलब जो कंसर्न पर्सन्स होंगे एंड ऑफिसर्स होंगे, दे विल विजिट टू द होम्स, दे विल ट्राई टू टेक द रॉ डाटा कि देयर आर हाउ मेनी मेल्स, देयर आर हाउ मेनी फीमेल्स, व्हाट इज द एड्रेस ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेस, व्हाट आर द कॉन्टेक्ट नंबर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस तरह से ये जो डेटा कलेक्ट होकर के आएगा वो पहले रॉ डेटा होगा। अब उस रॉ डाटा को पब्लिश इतनी आसानी से नहीं किया जा सकता क्योंकि देयर इज अ चांस ऑफ एरर इन कलेक्शन ऑफ द डाटा। सम डाटा मे बी रिपीटेड। मान लीजिए आप दिल्ली में रह रहे हैं, तो आपकी काउंटिंग दिल्ली में भी होगी, आपकी काउंटिंग अरुणाचल प्रदेश में भी होगी, या मैं अरुणाचल प्रदेश में रह रहा हूँ तो मेरी काउंटिंग दो जगह होगी। तो सम डाटा मे बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन, सम डाटा मे बी लेफ्ट। हो सकता है किसी विलेज, किसी बस्ती, किसी झुग्गी झोपड़ी का वहां पे कोई सर्वे करने ही नहीं गया और वहां पे डाटा छूट गया। तो पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल ट्राई टू कलेक्ट सच टाइप ऑफ डेटा, रॉ डाटा। जब रॉ डाटा आ जाएगा तो फिर उसको एनालिसिस किया जाएगा कि अभी इसमें क्या क्या एरर्स हो सकती हैं। फिर उसके बाद फिर वो डाटा बनाया जाएगा, फिर उसको भेजा जाएगा वेरिफिकेशन के लिए कि यू गो एवरी हाउस and try to verify this name, address, age, contact number, qualifications, male, female, caste, whatever be. After that, filtration theory is applied, and then the data, then the information which is become ready, that is known as the final report. तो पहले जो रिपोर्ट आती है that is known as the interim report, and the report which comes after the filtration and after making near about error free, that report is known as the final data. अब ये जो डाटा आ रहा है इनको रिप्रेजेंट करने के लिए जो भी मेथड्स होंगे वो मेथड्स अप्लाई किए जाएंगे। तो one method that is adopted is known as the bar chart। देखिए हम आपको बार चार्ट, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, टेबल्स एंड मिसलिनियस, अगर कुछ भी छूट जा रहा है तो उसको, ये सब मेथड से हम जो भी डेटा आया है वी विल ट्राई टू रिप्रेजेंट द डेटा। तो स्टेप बाय स्टेप वी विल मूव, वी कैन मूव simultaneously, we can give some examples of this, but best method is now we should move step by step। तो अभी मैं आपको बार चार्ट स्टार्ट करने जा रहा हूं और आप इस बार चार्ट को आप टेबल आप बनाते चलिए मेरे साथ। पहले इसको बना लीजिए, फिर हम इस पे डिस्कशन करेंगे। This is a graph which is plotted on x-axis and y-axis, and this x-axis represent the branches, and this represent the sales in thousand numbers, sales in thousand numbers, and
This is 10, 0, 20, 30, 40, अब इसको हम हटा देते हैं, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 and 120, 110. Suppose this is 110. And this is B1, B2, B3, B4 and B5 and B6. Here two types of data is given, and this data, one is denoted by blue color, या हम दूसरे कलर में करेंगे क्योंकि आपको शायद बोर्ड पे ब्लू और ओ ना दिखाई दे रहा हो। तो 2 years दिया हुआ, one data is given for year 2000 and the data is given for year 2001. This is the company, and sales of the books from 6 branches. There is a company which is trying to sell the books in different years, and their branches are like this. So first is this data is $80 and 105. 105. ये टेबल आपको कल शेयर हो जाएगा, इसलिए आप उसके लिए अगर कोई एरर होती है तो नो नीड टू वरी. This is denoted, one is denoted by this first type. It is for the 2000. तो 2000 का जो डाटा है, this is denoted by such type of the inclined line. And 2001, that is denoted by plane. So this is the sale of book 1. This is the sale of branch 1. Similarly, B2, B3, right? It is 80, it is 105. Second case of the B2, 75 and 65. It is 75. This is, वैसे तो मैं कलर पेन यूज कर रहा हूँ, पता नहीं आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिख रहा है. It is 75, that is denoted by this, and then angle is 65, that is, this is 65. It is for branch B2, sale of the books in branch B2. It is the sale of books in branch B1. Third, 95 and 110. 95 and 110. 95 and 110. $95 and 110. So this is the for the 110. It is for the B3. Then 85 and 95. 85 and then you can say the 95. मैं यहाँ पे वैल्यू लिख दे रहा हूँ, अगर ग्राफ में टेढ़ा मेढ़ा या कुछ भी दिखाई दे
So that doesn't matter because numerical value is given here. And 8 is B4. Then B5, 75 and 95. 75, this, and 95. Seventy-five and 95. This. And this is B5. And B6, 70 and 80. 70 and 80. So this is 70, this is 70, and this is 80. It is 70, it is 80, and this is for B in B6. B6. आप इस ग्राफ को बना लीजिए पहले. होप आप लोग ने इसको बना लिया होगा. आप इसके क्वेश्चंस पहले इसके इंट्रोडक्शन लिखिए. I think now you should save in your copy. Now, this bar chart was given to show the sales of books. Bar chart to the bar graph to show the sales of books, to show the sales of books in bracket in thousand, you can say 1,000 books from 6 branches, from 6 branches of a publishing company, of a publishing company, of a publishing company during 2 consecutive years, during 2 consecutive
consecutive years. 2000 and 2001. Okay. Branches are, I think you have seen in the graph, that was branches where V1, V2, V3, V4, V6. Now, come to the questions. ये जो ग्राफ है उस ग्राफ को आप सामने रखिए and note down the first question from that graph. First question is, what is the ratio of total sales? What is the ratio of total sales of branch B2 part of branch B2 for both years, for both years, to the total sales of branches, to the total sales of branches, total sales of branches B4 for both years, B for branch, total sales of branch B4 for both years, both years. Answer A, that is 2:3. Answer B, 3:5. Answer C, 4:5. And answer D, 7:9. Read the question carefully, see the data given in the chart and try to solve. Very easy question. कोई चीज इसमें हिडन नहीं है, कोई चीज टफ नहीं है. What is the ratio of total sales of branch B2 for the both year to total sales of branch B4 for both the year? Solve it and give the answer. सर हाँ सर, ये B2 का ये जो 2000 का वो तो नंबर 75 है, और 2001 का दिखाई मिला ही नहीं लिखा है. दिखाई नहीं है, लिख लो. हाँ, 2001 का सर. B1 का 2000 का 80 है, 2001 का 105 है. एक बार फिर से डाटा वेरीफाई कर लीजिए. B1 for 2000 80 and 2001 105. B2 75 65. B3 95 110. B4 85 95. B5 75 95. B6 70 and 80. ओके. ये सब थाउजेंड्स में है. आप सॉल्व कीजिए और रेशियो निकालिए. आपको केवल जोड़ना है, दोनों ब्रांच का जोड़ करके. For B4 you have to add the both branches, both years. Similarly B4 for both the years and divide it. Sir, I got 7:9. 7:9. ठीक है, मैं चेक करता हूँ और लोगों को करने दीजिए. Everybody will try it. ये कोई क्वेश्चन बहुत आसान है, इसमें नथिंग इज टफ. और ये ऐसा टॉपिक है जिसमें फुल मार्क्स मिलता है एग्जाम में. From tomorrow we will share the PDF file.
तो आपको और आसान हो जाएगा, बिकॉज क्वेश्चन दैट वुड बी एट योर स्क्रीन, आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देखते रहोगे। वैसे स्क्रीन शेयरिंग तो शायद यहाँ से अभी नहीं हो पाएगी, अदरवाइज आई कैन मेक द, जस्ट 1 मिनट, लेट्स ट्राई। नहीं, अभी नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं। Tomorrow you will get the screen sharing also. Along with this, you will get the PDF. And क्या आंसर आया? Anyone else? One person has given the answer 7:9. और कोई? क्वेश्चन समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? देखिए, the ratio you have to find out the ratio of the total sales of branch B2 for the both the year. तो ब्रांच B2 ध्यान रखना, B2 का कितना है दोनों साल के लिए? 75 प्लस 65 to ratio of what? Branch B4. B4 is 85-95. 85 प्लस 95. अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 140, अब देन इट इज 180, तो इट इज 7:9. तो करेक्ट आंसर इज बी. ओके, चलिए, लेट्स कम एंड अनदर क्वेश्चन. Another question is, लिखिए, total sales of branches B6. Question number 2. Total sales of branches B6 for B6 for both years to total sales of branches, total sales of branches total sales of branches of B3 for both the years, for both the years. Answer A, that is 68.54. This. Answer B, 71.11. 71.11%. Answer C, 73.17%. 73.17%. Answer D, that is 75.5%. 75.55%. Solve it.
Anyone? Uh, 73.11. 73.17. 73.70. C. That is C. Just one check it. Correct. और किसी का हुआ है नहीं हुआ, या कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको प्रॉब्लम आ रही है? कुछ नहीं करना है आपको, प्रॉब्लम में सीधा दिया है क्वेश्चन में कि टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच B6 फॉर बोथ द ईयर इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच B3 फॉर बोथ द ईयर. तो B6 का कितना आया है टोटल सेल्स? हाउ मच इज दैट? B6 इज 150, यही तो है. और B3 का कितना है? दैट इज 205 into 100. इसी को सॉल्व कर लीजिए, दैट इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब जिन लोगों का ऑफिस है वो ऑफिस 10 बजे स्टार्ट हो गया है, अभी नहीं स्टार्ट हुआ है? दामशु, या स्टार्ट हुआ है, इसीलिए सर हम जो 9:30 इतना कोई अभी लेट होना पड़ रहा है. मतलब अभी ऑफिस आज जाना नहीं जाना है? जाएंगे सर अभी 10 बजे. आप क्लास होने का साथ साथ निकल जाएंगे. ओके, ठीक है. दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग कि हमें दूसरा भी क्वेश्चन लेना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3 is what percentage of average sale? What percentage of average sales of branches B1, B2 and B3 B1, B2 and B3 in 2001 is the average sale sales of branches B1, B3 and B6 in 2000. Answer A, that is 75%. Answer B, that is 77.5%. Answer C, that is 82.5%. Answer D, that is 87.5%. 87.5%. Solve it. सर हमको बोलिए कि B1 का 2000 का 110 था ना 105 था सर.
ग्राफ में 105 था ना, 110 था इसमें। B1 का 2000 है 80 एंड 2001 100.05। 100.05, ठीक है। या 80 105, B2 75 65, B3 95 110, B4 85 95, B5 75 95, and B6 70 to 80. एट्टी 87.5। 87.5. No, no, no. Correct. एक मिनट, 1 minute. Question number 3 है ना? Question number 3B. Correct. Anyone else? Sir, same answer. Same है ना? So 2 people have given the same answer. Answer D. If anyone has objections, they can ask. Now proceed another question. Question number 4. अगर किसी को क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द एवरेज सेल, व्हाट इज द एवरेज सेल what is the average sales of all branches of all branches in थाउजेंड अपना लिख लीजिएगा, for the year 2000. Answer is A 73, B 80, C 83, D 88. एवरेज निकालने का तरीका क्या है? सम ऑफ ऑल दैट डिवाइडेड बाय नंबर. व्हाट इज द एवरेज सेल ऑफ ऑल ब्रांचेज, व्हाट इज द एवरेज सेल ऑफ ऑल ब्रांचेज इन नंबर फॉर द ईयर 2000. तो 2000 की जितनी भी ब्रांचेज है उनका सम कर दीजिए, तो 2000 में आपका हो जाएगा 80 प्लस 75 प्लस 95 प्लस 85 प्लस 75 प्लस 70 डिवाइडेड बाई 6, क्योंकि 6 ब्रांचेज हैं तो सारी ब्रांच का जो 6 ब्रांचेज हैं, दिस इज द एवरेज एंड दिस इज द आंसर. क्या आंसर आएगा आप बताइए, इसको सिंप्लीफाई करिए. सर 80 है. 80 है. 80 इज करेक्ट. करेक्ट आंसर इज 80. नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है, दैट विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस ग्राफ एंड क्वेश्चन इज question number 5, total sales of branches. Question number 5,
total sales of branches B1, B3 and B5. B1, B3 and B5. B1, B3 and B5 together for the year. Together for the year. Each A. Answer A. That is 250. Answer B. That is 310. Answer C. That is 435. Answer D. That is 560. Total sales of branches B1, B3 and B5 together for the year, for both years, for both the years, for both the years. बहुत सिंपल है. And its answer is D. D means 560. तो इसे आप सम कर सकते हैं, सॉल्व कर लीजिए. There is the 560.